Let us begin with the chapter 7 sound. Beta, the first two pages are nothing but the revision of what you have studied in your 9th standard. Audible range, ultrasonic, infrasonic, relation between frequency and time period, all those definitions of amplitude, time period, wavelength, then this relation, then what is your transverse waves, what are your mechanical longitudinal waves, difference between light waves and sound waves. All this you have studied in your 9th standard. You must give a reading to it, but don't skip it. Okay, now I'm going to start from the topic reflection of sound waves. Okay, and the syllabus also starts from here only, reflection of sound waves. So now let us study what is sound waves. The return of a sound wave on striking a surface such as wall, metal sheet, plywood, etc. back in the same medium is called reflection of sound wave. बच्चे मान लो एक साउंड वेव आ रही है, वो किसी भी एक ऑब्स्टेकल को, रुकावट को, मान लो वो वॉल हो सकती है, कोई प्लाईवुड हो सकती है, कोई शीट हो सकती है, उसको स्ट्राइक करके अगर वो वापस उसी मीडियम में वापस जा रही है तो इट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव इज दैट द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिस सरफेस से वो स्ट्राइक होके वापस आ रही है वो जो सरफेस है उसका साइज जो है, और वो साउंड की जो वेवलेंथ है जो आके उस पर स्ट्राइक कर रहा है, उसकी वेवलेंथ से उसका साइज रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ज़्यादा होना चाहिए. दैट इज साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव. एंड दिस फिनोमेना इज यूज्ड इन megaphones, soundboards, ear trumpets, all these things we use the same phenomena. Even in the stethoscope also we use this phenomena, that is the reflection of the sound waves. Now the very important topic is echo. What is echo? But you remember, whenever a sound strikes an obstacle which is at a distance and it returns back, that is it reflects back, that is called an echo. But a very important condition which you have to mention is that after the original sound has stopped, means that sound which is heard after reflection from an obstacle, when the original sound has ceased or stopped, that is only called an echo. Because sometimes what happens, the original sound does not even finishes and the echo is heard, then that is not called echo, because that is gets mixed with the original sound. Now next is condition for hearing an echo. What is the condition for hearing an echo? An echo is heard only if the distance between the person and obstacle is long enough to allow the reflected sound to reach the person at least 0.1 second after the original sound is heard. It means बच्चे, एक बार आपने जैसे अब कुछ बोला है, अगर आपका जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए जब आपका ओरिजिनल साउंड फिनिश हो गया है, उसके 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए. अगर नहीं आएगा तो हमें वो मिक्स सुनाई देगा, हमें क्लियर इको सुनाई नहीं देगी. अब बच्चे आपको पता है टाइम, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया. बच्चे अब यहाँ पर हम डिस्टेंस को 2d लेंगे, d नहीं लेंगे. ना व्हाट इज द रीजन? बच्चे मान लो ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आप पर्सन है कोई, ये आपका ऑब्स्टेकल है. अब साउंड पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से स्ट्राइक करके वापस भी तो आएगा ना बच्चे. अगर ये आपका डिस्टेंस d था इन दोनों के बीच में, तो पहले साउंड ने d डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वहाँ से इको वापस भी आई, तो d प्लस d कितना बन गया आपके पास, 2d. इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन स्पीड ऑफ साउंड आपने मान लो v ले लिया. अब अगर मुझे d की वैल्यू चाहिए, v डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो v इंटू टी, 2 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, तो d इज इक्वल्स टू vt बाई 2. नाउ बच्चे सी, हमें पता है कि टाइम कितना चाहिए इको के लिए, 0.1 सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड. कई बुक्स में 330 मीटर पर सेकेंड भी ले लेते हैं, कई बार 340 भी, मीन्स 330 और 340 के बीच में लेते हैं हम लोग. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सब में, v की भी t की भी, और उससे आपका d का आंसर कितना आ जाएगा, 17 मीटर.
इट मीन्स अगर मुझे इको सुननी है किसी चीज़ की तो मिनिमम उस ऑब्स्टेकल के और जिस चीज़ से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, 17 मीटर। अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 17 मीटर से कम होगा तो मुझे इको सुनाई नहीं देगी। Now let us see all the three or four conditions to hear the echo. First is what? The minimum distance between the observer and the reflector in the air must be 17 meter. अब बच्चे ये तो था एयर की बात। अगर मुझे वाटर में चाहिए बच्चे, एयर की स्पीड थी 340 मीटर पर सेकेंड, वाटर की स्पीड होती है 1400 मीटर पर सेकेंड, तो v की जगह पे 1400 सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आ गया, 70 मीटर। मतलब वाटर में आपका मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, 70 मीटर चाहिए, तो ही हमें इको सुनाई देगी। Then is the size of the reflector must be bigger than the wavelength of the sound wave. ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। थर्ड है कि बच्चे इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो इको आ रही है वो हमारे ईयर्स को ऑडिबल होनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए, फिर ही इको पॉसिबल है, वरना नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?